हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1270th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। मेरे रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर्स जूलर्स, द प्रेजेंटर्स ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू मनी एज, मैम्पी रीजनेबल डाइट by Nidhi Rathi. Also a big thank you to who watch my show, like my show, share my show, and a big thank you to विनय साहू, LIC बोले तो विनय साहू। मेरी आज की मेहमान जो है वो अमृतसर से है, और अमृतसर से पिछले 32 साल पहले उन्होंने एक रिश्ता एक तरीके से तोड़कर वो नागपुर आई थी, और 32 सालों से नागपुर प्राउड नागपुरियन का खिताब अपने आप को दे चुकी हैं, और उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं। शी इज़ वन पर्सन हु हैज़ एक्चुअली मेड होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी का जो ये पूरा का पूरा कोर्स है, विच इज़ करियर ड्रिवन कोर्स। शी हैज़ हेल्प्ड thousands and thousands of students out there, and she's inspired many to be and make a career into the hotel management services. मेरे साथ मेरी आज की मेहमान, the director of Tuli Catering College, with me is Dr. Urvashi Roy, Yash Roy. Hi, ma'am. Hi. So when I say Roy, you become Bengali suddenly. When you say Yash Roy, I become a Punjabi automatically. Super. How are you, ma'am? I'm good. I'm all good. So, ma'am, it's been long that I've been waiting to get through all your people who can help me out with getting an interview with you. So, thank you so much for taking out your time and giving me the opportunity. Pleasure. मैम, 32 साल पहले अमृतसर की उर्वशी सरीन की बात करते हैं हम, जी। है ना मैम? हाउ यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड? क्या सपने थे, क्या बनना था? In our times, ऐसा बहुत ज़्यादा career oriented girls raise नहीं करी जाती थी. But in my case, yes, I wanted to do something always. Not wanting to be a simple housewife. But to come to this point, I had never thought of. Yes, I was very adventurous. I was self-motivated. But yes, this journey brought me here, which I did not envisage. So, ma'am, when you were a child, you come from what kind of family you come from? Your father was into what kind of profession? I am from a family of lawyers. My father, my grandfather, they were all advocates in Amritsar, and they had a good name in this vocation. So, कभी ऐसा नहीं लगा कि आप भी एडवोकेसी में जाएं, आप भी एक लॉयर बने? ऐसा कोई सपना कभी नहीं? Probably वो होता है ना, generation next पे चला जाता है. जी. So that is why I dropped and my daughter took up law. So I was never into law. Okay. So मैम, जब ये बात हुई कि अब एक रिश्ता कैसा हुआ मैम? ये नागपुर के साथ रिश्ता कैसे बना? आप शादी से पहले भी कभी नागपुर आई थी, या No. ये आपको ऐसा लगा कि ये कोई मास का शहर है जहाँ जाना है? नागपुर कब सुना था पहली बार? जब मेरे लिए रिश्ता आया था. So in our times we had arranged marriages mostly. So mine was also an arranged marriage. I'd never been to Nagpur, rather never been beyond Delhi. So this was something new. But yes, Nagpur had to happen, so it did happen. And got engaged, got hooked, came here. Till then, of course, I'd never thought. But yes, Nagpur was a cultural shock coming from Amritsar, which was a city stylish. And Nagpur was the most simple place I'd ever seen. Of course, Nagpur has grown now. मैम, हाउ डू यू सी नागपुर? 32 साल पहले आई थी तब कैसा था, और अब कैसा लगता है? ऑनेस्टली बताऊं तो 32 साल पहले जब मैं आई थी तो ऑल माय कजन्स सेड एक भी ढंग का चेहरा नहीं यहाँ दिखाई देता है. एंड टुडे आई सी लॉट्स ऑफ यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स, स्मार्टली ड्रेस्ड मेन, एंड थिंग्स हैव रियली चेंज्ड. वी हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे टू अ वेरी स्टाइलिश एंड अ नाइस सिटी. सो मैम, राजीव सर को पसंद करने का कारण क्या था? उनकी आवाज, उनका स्टाइल, या उनका वो बच्चन लुक? बच्चन लुक. बट मैम, कैसे ये रिश्ता अरेंज कैसे हुआ? It was through our neighbors actually. One of our neighbors' family
they are connected. So they proposed and we met and finally we agreed. That's how. जब नागपुर आई तब क्या राजीव सर की फैमिली क्या इस किस्म की थॉट प्रोसेस में थी कि घर की बहू बाहर जाए काम करे, क्या इस किस्म का थॉट No, on प्रोसेस? the contrary, they were very very conservative. फिर कैसे हुआ मैम ये पूरा? Gradually हुआ, थोड़ा थोड़ा करके I stepped out. Initial थोड़ा सा hesitation था, but then they also took it in their stride and they were very supportive because during my child's infancy and when she was small, they were always there supporting us, looking after my girl, doing things while I was away. So they were supportive. मैम होटल मैनेजमेंट ये एक पूरा का पूरा करियर ड्रिवन कोर्स है, आपका इस किस्म के कोर्स के साथ जुड़ना कैसे हुआ? I don't know. I was always inclined towards hotels. मुझे ऐसा लगता था बड़ी glamorous life and it's very nice. So while I was studying, I opted for hotel management. Initially, my grandparents were really against this. They said लड़कियां अच्छे घरों की लड़कियां ये सब नहीं करती हैं. But then I did my course and I told them that I am not saying that I will work, but at least let me study. जी. And true to my word, they never let me work. So once I got married and यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में होटल मैनेजमेंट शुरू हुआ था और तब they were looking for teachers. And since it was very close to my house, so I thought, okay, let me give it a try. And I started teaching. And at that point of time, जो subject मैं पढ़ाती थी, there was nobody to teach that subject. So I was always the preferred choice from all the colleges. So that's how I started. Ma'am, hotel management as a career, working in a hotel, in a restaurant, in a food industry, has evolved with time. पहले मैम जो होटल मैनेजमेंट करता था, लोग उसको जिस नज़र से देखते थे उसमें वो ये रहता था कि वो किसी की प्लेटें उठाएगा झूठी या फिर वो किसी की झूठी प्लेटें मांझेगा, है ना मैम, उसको उस नज़र से देखा जाता था. वक्त के साथ मैम होटल इंडस्ट्री का भी पूरा का पूरा नज़ारा बदला है. आप इसको किस तरह से देखती हैं? इनिशियली भी ऐसा नहीं था कि बर्तन मांजेगा और बर्तन उठाएगा, बट हाँ एक ये परसेप्शन जरूर था लोगों का. एंड उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द होल कॉन्सेप्ट ऑफ होटलिंग हैज चेंज्ड. सो नाउ समबडी हु इज टेकिंग योर ऑर्डर हैज टू बी क्लोज टू यू, फ्रेंडली, so that he can offer his advice and you can connect with him better, so that you can share your choices. So things have really changed. एंड पहले ऐसा नहीं था. पहले लोग होटल भी कम जाते थे जी, और होटल को थोड़ा सा अलग नजर से भी देखते थे जी. नाउ होटलियरिंग हैज बिकम एन एवरीडे प्रोसेस. इवन अगर आपका कोई बिजनेस कांटेक्ट है उसको भी आप होटल लेके जाते हैं, आपके फ्रेंड्स को आप लेके जाते हैं. कोई भी आपका आज की डेट में कुछ भी आपको सीरियस काम भी करना है तो आप किसी होटल में मिलना पसंद करते हैं रादर देन मीटिंग इन एन ऑफिस और एट होम जी. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. The whole perception towards hoteliering has changed. मैम कमाई मलाई दोनों बदली है वक्त के साथ. मैम होटल मैनेजमेंट में पहले जब कोई करियर बनाता था तो उसकी अर्निंग्स भी बहुत कम हुआ करती थी. मैम आज अर्निंग्स में कितना फर्क आया है? अर्निंग्स में काफी फर्क आया. इनफैक्ट वेरी वेल अर्न्ड प्रोफेशन है ये. एंड होटल मैनेजमेंट करके आप सिर्फ होटल में काम नहीं करते हो. यू वर्क इन एयरलाइंस, सो यू नो एयरलाइंस में अच्छी सैलरीज रहती हैं. यू वर्क इन क्रूजेज, अगेन अच्छी सैलरीज रहती हैं. आजकल रिटेल सेक्टर वाले होटल मैनेजमेंट के बच्चों को लेना चाहते हैं, तो रिटेल सेक्टर में अच्छा पे पैकेजेस रहते हैं. सो दे आर बीइंग पेड एट पार विद अदर प्रोफेशंस. सो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अच्छी सैलरीज नहीं है. दूसरा, आज की डेट में एक इंजीनियर बच्चे को तुरंत नौकरी शायद नहीं मिलेगी, पर होटल मैनेजमेंट वाले को मिल जाती है. सच बात है. तो आई थिंक प्रोफेशनली देखा जाए तो होटल मैनेजमेंट इज अ बेटर प्रोफेशन देन एनी अदर. इंजीनियरिंग डेफिनेटली. इंजीनियरिंग के मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एक साल कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं कि मैम हम बहुत बोर हो गए, हमारा वो प्रोफेशन ही नहीं है और हमारे पेरेंट्स ने हमें जान के डाल दिया था और अब हमें नहीं करना है. सो दैट ओनली शोज दैट फोर्सफुली भी तुम उनको नहीं करवा सकते. एंड आई नो सो मेनी इंजीनियर्स
जो इंजीनियरिंग करने के बाद जाकर अपना कोई और फूड इंडस्ट्री से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, तो कांट से। बट मैम तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हैड यू वर देयर विद द ऑर्गेनाइजेशन। मैम हाउ हैज द ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व विद टाइम? आप इसको किस तरह से देखते हैं? We started as a very small college. Or as an institute? As an institute. Right. So everybody knows के तुलीस के बहुत सारे बिजनेस और भी हैं जी, तो उनके ऊपर फोकस ज्यादा रहता था जी। But when I joined, I looked at it as a challenge to bring them at par with the other professions and of course with the other businesses of Tuli. Right. So gradually we kept growing, we kept adding a lot of things, and today we are here. We've landed at the top. It's been how many years, ma'am? It's been 22 years. 22 years. Yes. Oh wow. So since 22 years, ma'am, होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? कहाँ नहीं पहुँचे हैं? तो मैम कहाँ नहीं पहुँचे? I have an alumni base of more than I think 2,500 students. Wow. And they're all very very well placed in India and abroad. आप मानेंगे नहीं, लंदन में तो एक कम्युनिटी है तुली कॉलेज स्टूडेंट्स की. Wow. There are so many of them there. And अगर बोले कोई भी एक बच्चा बोल देता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ तो कोई ना कोई कहता है हम एयरपोर्ट तो पहुंच ही जाएंगे अपने कॉलेज के बच्चे को लेके आने पे, even if they don't know each other. Wow. So that's how they look after each other. So it's a community that they've created there. So I have students in Australia, I have students in Dubai, I have students in Australia, I just told. I have students everywhere. In fact, I've realized whenever I put on Facebook traveling to so and so place, तो एक रात बच्चे का आ जाता है मैम कहाँ रुकने वाले हो, मैं आ रहा हूँ आपको मिलने. So that kind of thing happens. So that means सब तरफ है. And India, of course, yes. But ma'am, like with time, the child now is taking the decisions. अब जो बच्चा है वो डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना है ना मैम. स्पेशली आफ्टर थ्री इडियट्स के पहले की लाइफ बहुत अलग थी है ना. वी शुड एक्चुअली थैंक द मूवी फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस. सो मैम लेकिन होटल मैनेजमेंट जैसे जो करियर ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं इसको लेकर जो जागरूकता है वो मैम उतनी, जैसे कोई अगर ऑलरेडी प्रोफेशन में है एंड इट बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल, मैम वो क्यों नहीं आगे बढ़ के इसको, इस अवेयरनेस को आगे ले जाते हैं कि इट्स अ ग्रेट करियर? देखे जाते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन से निकले हैं या पढ़ चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं वो तो लेके जाते ही हैं. इट्स अ माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स दैट नीड्स टू चेंज. अभी जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के बच्चे मेरे पास अभी भी पढ़ रहे हैं जो बोलते हैं हमने 1 साल इंजीनियरिंग करा, हमको नहीं करना था, हम फेल हो रहे थे, बट पेरेंट के कहे पे हम कर रहे थे, एंड देन दे शिफ्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू होटल मैनेजमेंट. सो दैट इज ऑल्सो a student's mindset ना. मतलब even if they were forced they did not stick to it. जी. So it's their mindset only that. मैम 22 साल पहले एक बच्चे को जोड़ने से लेकर आज जब बच्चे अपने आप आते हैं एडमिशन्स के लिए, मैम ये जो पूरी जर्नी रही है इसमें जो हार्डशिप्स हुए हैं, हाउ डिड यू कॉम्बैट, हाउ डिड यू स्टूड अगेंस्ट? वेल हार्डशिप्स तो काफ़ी हुए हैं बिकॉज जब स्टूडेंट नहीं रहता है तो कॉलेज का इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू नीचे जाता है. सो लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट. कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहता है बिकॉज वी डोंट हैव पीपल टू पुट इन फ्रंट. सो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं. एंड यूनिवर्सिटी रूल्स एंड AICTE रूल्स वर ऑल्सो वेरी टफ इनिशियली. सो वो सब करते करते हम लोग इस स्टेज पे आए कि स्टूडेंट काउंट ही मैटर करता है. सो ग्रेजुअली ऑफ कोर्स स्टूडेंट काउंट भी इम्प्रूव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ एंड इंडस्ट्री भी इवॉल्व करी. सो ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर आज हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं. हैज इट एवर हैपेंड कि बच्चों के एडमिशन कम हो रहे हैं इसलिए आपने आप वो चीज़ घर तक लेके गई, घर में भी वो उस किस्म का आपने माइंडसेट रखा? नहीं. राजीव सर आपसे चाय मांग रहे, आपने बोला बच्चे ला दो चाय दे दूंगी. ये करना पड़ेगा मुझे. गुड आइडिया. नहीं, एक्चुअली somehow maybe I'm blessed with this.
The moment I sit in my car, I wash off my college ka identity and I become a homemaker and a mother and a wife at home. So I do not carry pressures to my home. म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, Yes, है ना? yes. और आए दिन अब तो वीडियोस भी आप बनाने लगे हैं, हाँ, है ना? मैं बनाने लगी हूँ। जी। सो मैम, ये कहाँ से आता है? क्या ये पहले से था या अब ये नया नया एक इंटरेस्ट जागा है? नहीं, ये नया इंटरेस्ट है। माई हस्बैंड इज अ गुड सिंगर। यस, ही इज। सो हम लोग बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ ही सिंग्स, एंड आई यूज टू कंटिन्यू टू वॉच पीपल सिंगिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मैं बोर हो जाती थी, तो then I started and he encouraged me. I started singing, though I am not a very good singer, but then मजा आता है, तुम उसकी तैयारी करते हो और फिर उसको परफॉर्म करते हो, whatever is the outcome. Everybody cannot be a very good singer, but yes, that confidence has come in me. अभी मुझे कोई भी गाना बोलते हैं तो मैं बोलती मैं गा लूंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, though I know it is a tough song, but I practice as much as I can and I sing. So it really relaxes me and takes my mind off lot of things. So मैम, भले ही काफी अब वक्त और उम्र बीत चुकी है कि किसी कोई लोरी सुनाए और रात को सुलाए, है ना? लेकिन अगर कभी आपकी तबीयत खराब होती तो आप सर से कहती हैं, या सर की तबीयत खराब होती तो आपसे कहते हैं कि थोड़ा लोरी गा दो, आराम से नींद आ जाए, गुनगुना दो कुछ? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोलती हूँ। मैं कभी कभी सडनली बैठे बैठे बोलती हूँ, चलो मेरे लिए एक गाना गाओ। ये क्या बात हुई, ऐसे कोई गाना गाता है क्या? It's just a joke. I keep telling him sometimes. I say suddenly I would tell him. Ma'am, marriage as an institution, the man, the husband learns a lot from the wife. In fact, every day the husband learns something from the wife. It's both ways. So no, my next question was that कि आपने राजीव सर से क्या सीखा? मैंने राजीव सर से काम रहना सीखा. Whatever is the situation, just keep your cool, keep your calm. ये बहुत important था मेरे लिए, because मैं एज अ चाइल्ड काफी आई वुड से अग्रेसिव ही थी, बट देन द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन इज बिकॉज राजीव वाज अ वेरी कूल पर्सन. सो धीरे धीरे मेरे में भी वो रब इन हो गया है. सो एक फैमिली रहती है घर पर और एक फैमिली आप बनाते हैं अपने वर्क प्लेस पे. मैम, आपकी वर्क प्लेस की फैमिली में कौन कौन है? मेरी वर्क प्लेस की फैमिली में मेरा स्टाफ है, जो 5-7 लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं हमारे साथ शुरू से. यस, जैसे प्रज्ञा टिम्बुर्नेकर, विपुला सोनी, आभा बंसोड़, स्वाति नारनौरे. फिर मेरे इसमें एडमिन में है रोशन है, शुभम है, देश पांडे जी हैं. ये सारे जो लोग हैं, वालके हैं, ये सब बहुत पुराने हैं मेरे साथ. तो ये जरा सा भी हिलने से मुझे भी तकलीफ होती है. मतलब कई नए आते हैं और जाते हैं, कभी ऐसी तकलीफ नहीं होती, बट इन लोग को मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ही रहने चाहिए. तो मैं कई दफा बोलती भी हूँ कि मेरे जाने से पहले कोई नहीं जा सकता. तो that's because I have a feeling for them, I love them, I care for them, and I feel कि ये मेरे पास ही रहने चाहिए. मैम, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इसमें ऐसा कौन सा, मतलब अगर आप देखें अपनी लाइफ को, मैम, कौन सा टाइम सबसे टफ रहा जो आप कहीं ना कभी भी याद करती हैं कि कौन सा टाइम मेरे लिए सबसे टफ रहा, और उस टफ टाइम को से निकलना कितना आसान था या कितनी संघर्षपूर्ण जर्नी रही उसकी? टफ टाइम मेरा था, एक टाइम पे मैं पढ़ाई भी कर रही थी. माई चाइल्ड वॉज ऑल्सो स्मॉल एंड वर्क प्लेस ऑल्सो नीडेड लॉट ऑफ अटेंशन. सो वो जो टाइम था, मैं प्रेशर में ही रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई ना कोई चीज मेरी रोज रह जा रही है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ. इवन दो आई वॉज पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा आवर्स डाल के काम करने की कोशिश करती थी. आई वॉज परसुइंग माई PhD. सो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के PhD का काम करती थी, ताकि मेरी बेटी के स्कूल जाने से पहले मैं फ्री हो जाऊं, या घर जाके मैं ऑफिस की कुछ टेंशन्स ले जाती थी, क्योंकि यहाँ का काम मेरा पूरा नहीं हुआ होता था. सो वो एक फेज था. उसमें भी वही कूल रहना इज इम्पोर्टेंट, काम रहना इज इम्पोर्टेंट, इवन दो 24 आवर्स वर फॉलिंग शॉर्ट. बट ये था कि सबका सपोर्ट. I had people in the office who would help me in my office work also. मेरा PhD का काम भी होता था, तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे को 1 घंटा भी कोई डिस्टर्ब मत करो, तो मैं कुछ काम कर लूंगी. ऐसा करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के
घर पे भी माय हस्बैंड वाज ऑलवेज सपोर्टिव, ही न्यू आई वाज डूइंग दिस, तो मेरी बेटी का होमवर्क वो करवा लेते थे, वो तब छोटी थी, तो ऐसा करके सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया एंड वो टाइम भी निकल गया। तो मैम ये आप बोल सकते हैं सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ कि सबका साथ आपका विकास? नहीं, मेरा विकास के साथ सबका विकास भी। आई कुड रेज अ बैलेंस्ड चाइल्ड, आई कुड लुक आफ्टर माय सोशल लाइफ आल्सो, आई कुड achieve my PhD, I could actually manage the college also. So सबका विकास certainly, but yes मेरा विकास हुआ क्योंकि मैंने PhD उस टाइम पे कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा धक्का लगाया अपने आप को, तो मेरा तो हुआ ही विकास। So ma'am, your daughter, if you can name her. She's Janvi. Janvi. So Janvi is grown up now. Yes. She is doing her law. Yeah, she's doing law now. So ma'am, and she's more like a friend now because Yes. you both go out together and have a great time. So ma'am, बेटी से क्या क्या सीख रही हैं आप? बेटी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आज की जनरेशन को नए नजरिए से देखना। बहुत सारे टॉपिक्स आजकल हम डिस्कस करते हैं जो हम फ्रॉम she calls us millennials. So millennials were thinking differently, right. And Gen Z thinks differently. So I've learned how to understand them also, because initially ऐसा एक रिएक्शन रहता था कि नहीं नहीं ये गलत है, but now I understand that it's not wrong. We were also doing these things while we were young, but we were doing it in a different way, right. And with so much of growth and evolving of the situations and circumstances, बच्चे थोड़ा अलग करते हैं, but it's not wrong. So to accept that, to find reasoning in that, that's what I've learned. Ma'am, when it comes to the youth today, and especially looking at this career-driven HMCT course at Tuli College, मैम आप उनका नज़रिया किस तरह से देखते हैं? मैं उनका नज़रिया, देखिए स्टूडेंट का एक नज़रिया ही चेंज हो गया है। आज से अगर मैं 20 साल पहले बात करूं तो मैं, अगर बच्चे ने कुछ गलती किया तो एक चाटा भी लगा देते थे, कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता था। Today's child will not take that easily. So we've also learned that नहीं, these students have to be treated in a different way. And being in this profession, हम हमेशा 17 साल के ही रहते हैं, क्योंकि हर साल 17-18 साल का बच्चा हमारे पास आता है, और हर 3-4 साल 5 साल बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे का बिहेवियर सब चेंज हुआ होता है। जो आज से 5 साल पहले बच्चे आते थे और जो आज आते हैं बच्चे, उनमें बहुत अंतर रहता है। बिल्कुल। तो देयर इज अ चेंज, एंड स्टूडेंट्स कीप अस फ्रॉम चेंजिंग, ऑलवेज दे कीप अस abreast of the changes. तो इनके साथ हम भी ग्रो होते रहते हैं, बट वी ऑलवेज रिमेन अ किड। मैं हमेशा बोलती हूँ हम यंग ही रहने वाले हैं, क्योंकि 18 साल के ही रहेंगे हम। ये बच्चे हमारे पास 18 साल की उम्र में आते हैं और हम इन्हीं की बातें सीखते हैं। तो वी विल स्टे यंग। मैम आखिरी के 2 सवाल मेरे, एक ये कि मैम अब एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया, 22 साल अपनी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत 22 साल आपने एक इंस्टीट्यूशन को खड़े करने में समर्पित किए, वहीं एक बेटी को बड़ा किया, एक हस्बैंड के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी जी, अब कुकिंग के शोज़ कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, बहुत सारा सोशलाइजिंग कर रही हैं, बहुत सारे युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। मैम और क्या करना है? व्हाट्स द बिग ड्रीम? आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट आई कीप सेइंग, मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं एम्ब्रॉयडरी भी करूंगी, सोशल सर्विस भी करूंगी, ये गार्डनिंग करूंगी। आई रियली लव डूइंग गार्डनिंग। आई हैव डेवलप्ड अ नाइस टेरेस गार्डन, तो उसको भी मैं ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। तो मैं यही बोलती हूँ मुझे सब छोड़ देना है, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करनी है। एंड एवरी स्मॉल लिटिल फ्रूट दैट कम्स आउट ऑफ दैट गार्डन, इट इज़ सो प्रेशियस। मेरे गार्डन में नींबू निकलते हैं, चीकू हैं, शहतूत हैं, ब्रिंजल्स हैं, पुदीना है, मेथी है। तो ये सब जब मेरी निकलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ओह समथिंग क्रिएटिव आई हैव डन, समथिंग आई हैव डन। सो ऑल दीज थिंग्स आई वांट टू डू, ऑल द थिंग्स जो तुम रेगुलर इतने टाइम में नहीं कर पाए हो, आई वांट टू डू, परस्यू ऑल माय हॉबीज। मैम अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, उर्वशी, सरीन, यश रॉय, मैम
कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सा ऐसा कोट उसके नीचे लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। एंड ऐसा क्यों? जो रुक गया वो खुद ही मर गया। तो देयर इज नो स्टॉपिंग। देयर इज सो मच टू डू इन दिस वर्ल्ड कि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कर सकते हो। और यू हैव टू गेट अप एवरी डे, ड्रेस अप एंड शो अप एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। You don't stop, just keep going. Yes, keep going. मैम, आपकी ये जो जर्नी है इसमें आप नहीं रुकी, इसलिए शायद आज आप इतने हज़ारों लोगों को इंस्पायर करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी कभी नहीं रुकना चाहिए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और ऊपर वाले से प्रार्थना कि वो आपको बहुत अच्छा हेल्थ बख्शे, जिससे आप रुके ना, थमे ना, और बाकियों को भी ये हमेशा समझाते रहें कि रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है। अगर आप चलते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं तक ज़रूर पहुंचोगे। हो सकता है कि आप उस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन आप चलते रहोगे तो सीखते रहोगे। देखिए, सीखते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे जी। और सीखते रहेंगे तो कभी भी हम बूढ़े नहीं होंगे। हम हमेशा 18 के ही रहेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा 18 की रहने वाली हूँ। तो सीखते रहना तो बहुत जरूरी है। और होटल मैनेजमेंट सीखना है तो तुली कॉलेज आइए। बिल्कुल बिल्कुल आइए, क्योंकि यू विल लर्न मच मोर देन जस्ट होटल मैनेजमेंट। आई एम श्योर। मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उर्वशी यश रॉय से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस स्पेशल शो ऑफ राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर। एक बड़ी अच्छी, जब मैं मैम से बात कर रहा था तब उनकी जर्नी के बारे में जब मैं बहुत सारी चीज़ें सुन रहा था, समझ रहा था, आप भी इसे सुन रहे थे, समझ रहे, तो बहुत सारी ख्यालात मन में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो मैं जब छोटा था तब टेलीविज़न पे एक एडवर्टाइजमेंट आता था, वो एक पेन का एडवर्टाइजमेंट था, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार एक पेन के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लिरिसिस्ट को, एक लिरिक्स राइटर को लिया गया था। लेकिन ये कोई इस ऐड को अगर करीबी से देखे, यूट्यूब पे आप इसे देख सकते हैं, और अगर इस ऐड को देखें तो कोई कह नहीं सकता कि ये पेन का ऐड होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग शब्दों से बना हुआ है, जिसमें जावेद अख्तर ये कहते हैं कि ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। हकीकत जो है वो यही है कि अगर आप अपने आप से लड़ना शुरू कर देना तो आप हर चीज़ जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोच के घर से निकलेंगे कि आज मैं दुनिया से लड़ लूँगा, तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए दुनिया से लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि किशोर दा आर डी बर्मन ने सही कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप बेकार की बातों में मत रहना, आप बस अपनी ज़िंदगी को उर्वशी यश रॉय जी की नज़र से देखिएगा और रुकिएगा मत, और सीखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप सीखते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो हर चीज़, हर दिन एक नई चीज़ सीखना चाहती है, और हर दिन एक नई चीज़ सीखने के बाद और आगे बढ़ना चाहती है, तो समझिए वो उर्वशी सरीन यश रॉय बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।